خدا کے زندہ کلام کو، اس کے خادم کو اپنی زوردار تالیوں میں ویلکم کریں، پاسٹر گلشیر کو، جن کے منہ میں آج اس نے ہمارے لیے زندہ کلام رکھ چھوڑا۔ بولیں سر آپ۔ یسوع نام میں سب کو سلام۔ جب کوئی لوگ ہولا علیہ السلام کر دینا پھر میں کلام میں بول جاؤں۔ ہولا علیہ السلام کا مطلب تم یسوع کی سلامتی نہیں چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یسوع نام میں آپ کو سلام، اس کا مطلب ہے یسوع کی سلامتی آپ پر ہے۔ اس کا سلام ہے مطلب لین میں تیار نہیں۔ یو آر اے اسپیشل پیپل۔ آپ دنیا کے اوپر، دنیا سے الگ قوم ہے، اور اس لیے آپ کا رویہ، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا بھی دنیا سے جدا ہونا چاہیے۔ خدا کا زندہ کلام آج ہم جو خدا کی حضوری میں سنیں گے، کہیں پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ نبی ایسا ہے، وہ پیغمبر ایسا ہے، وہ پیغمبر ایسا ہے۔ تو جب بات یسوع ناصری کی ہوئی، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ حوالہ پڑھنے کے لیے بڑا کسنایا گیا۔ یسایہ 53 چیپٹر ہے اس کا، سنیے گا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہاں لکھا ہے اس کی دوسری آیت میں، پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خوش زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی شکل و صورت، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، لوگ اس پر گویا روپوش تھے، اور اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہ جانی۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ پڑھا اور کہا کہ تیرا یسوع تو ایسا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ نہ اس کی کوئی شکل، نہ اس کی کوئی صورت، نہ اس کی کوئی خوبصورتی کہ جو ہم اس پر نگاہ کرتے، نہ اس میں کوئی حسن و جمال ہے کہ ہم اس کے مشتاق ہو جاتے۔ کہتا میں ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا، آپ بھی اتنے عرصے سے گیت گا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، موٹی چرچز میں جاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کوئی تبلے پہ پرستش کرتا ہے، کوئی گا کے پرستش کرتا ہے، کوئی کیسے دعاؤں سے کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یسوع کی تصویر بنائی ہے جس کے آگے میں پرستش کرتا ہوں، جس کے آگے دعائیں رکھتا ہوں، جس کے آگے میں گیت گاتا ہوں؟ بعض لوگ ناچ کر بھی گاتے ہیں۔ ایسے بھی چرچز میں کلام سنانے گیا، وہاں لوگ ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، ایسے جھومتے ہیں جیسے شادی کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ کبھی تصویر آپ نے بنائی اپنے یسوع کی کہ وہ کیسا ہے؟ کبھی کسی نے بنائی ہو؟ جو تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں نا اس طرح، یہ ہمارا یسوع نہیں ہے۔ یہ تو ہیرو ہیں فلموں کے، جنہوں نے کردار کیے ہیں۔ یہ اس طرح یسوع کے نہیں، آپ سمجھتے ہو یہ یسوع، ایسا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے شکل بنائی ہو یسوع کی؟ کسی نے؟ بس ٹھیک ہے، بس انیا منگل دوڑی جانے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں ہم کہ ہمیں اپنے یسوع کی شکل کا نہیں پتا؟ کیسے ہم پرستش کرتے ہیں جس کی ہم معبود کی پرستش کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیسا۔ یرمیہ 9:23 آیت کہتا ہے کہ فخر اس بات پر ہی ہونا چاہیے کہ میں اسے سمجھتا، اس کو جانتا ہوں۔ آپ نہ تو اپنے معبود کو جانتے ہیں، نہ ہی اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، جتنے لوگ بھی خدا کا کلام سن رہے ہیں اور جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیے آپ دنیا سے الگ ہیں۔ آپ اس دنیا کے نہیں ہیں، نہ آپ کا خدا اس دنیا کا ہے۔
छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूं। शख्स था एक, उसे मुर्गियां पालने का बड़ा शौक था। उसने जमीन खरीदी पहाड़ों के अंदर, वहां उसने जमीन को सीधा किया, वहां मुर्गियां रखी। एक दिन वो देख रहा था कि वहां पर ऊंची जगह पर उकाब का जोड़ा रहता था। उसने कहा कि अगर मुझे इसका अंडा मिल जाए तो मैं मुर्गियों के साथ उसे पाल सकता हूं। कोशिश की, उसने सीढ़ी लगाई, जैसे भी की, वो घोंसले तक पहुंचा, उसे एक अंडा मिल गया। उसने वो अंडा लाकर मुर्गी के नीचे रख दिया और मुर्गी के भी अंडे थे, उस अंडों में उसने अंडा रखा, मुर्गी उस पर बैठी, चूजे निकले। जब चूजे बाहर निकले तो बड़े खूबसूरत थे, लेकिन जब अक्काब का बच्चा निकला तो उसके ऊपर ना पर थे ना कुछ और चीज थी, बस वो गोश्त एक छोटा सा लोथड़ा था। उसने उसको बड़ी हकारत से देखा और उसे छोड़ दिया। लेकिन वो अक्काब का बच्चा उन चूजों के साथ पलता रहा। आपने स्टोरी बड़ी गौर से सुननी, इसी के ऊपर हमारा कलाम। उस अक्काब का बच्चा भी खाता रहा, जैसे मुर्गी कुड़कुड़ करती, चूजे भागते, वो भी भाग पड़ता, और वहां से जैसे वो खाना खाते वो भी खाना खाता रहता, जैसे वो भागते वो भी भागता। करते करते वो बड़े हो गया और वो अक्काब का बच्चा बड़ा अक्काब बन गया। एक दिन उसने अपने आप को देखा, उन मुर्गियों के बच्चों को जो बड़े हो गए थे उनको देखा। उसने देखा कि मैं इनसे अलग हूं। उसने अपने पर खोले और थोड़ा फड़फड़ाया। जब वो फड़फड़ाया तो थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर वो फड़फड़ाया, थोड़ा और ऊंचा हुआ, फिर फड़फड़ाया और ऊंचा, फिर उसने अपने पूरे पर खोले और वो आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो गया। नीचे से उसको आवाज आई कि भाई थल्ले आ जा, तू साडा भरा है, साडे नाल रहना है। उसने कहा मैं तुम में से नहीं हूं, तुम जमीन के हो, तुम्हारा बसेरा जमीन का है, मैं आसमान का हूं और मेरा बसेरा आसमान है। और वो उड़ता उड़ता बुलंदियों पर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी दुनिया के अंदर दुनिया के हो गए हैं और आप भी मुर्गी के उन बच्चों की तरह, जैसे दुनिया कुड़कुड़ करती है आप भी कुड़कुड़ करते जा रहे हैं, जैसे दुनिया भाग रही है आप भी उसी रवशों में चलते जा रहे हैं। मेरे याद रखिए, खुदा का जिंदा कलाम ये हमें सिखाता है कि खुदा ने आपको अलग करके रखा है। उसने दुनिया के अंदर से इब्राहिम को उठाया और अलग कर डाला, फिर उसने इसहाक को उठाया, अलग कर डाला। इसहाक से ईसु याकूब, उसने कहा ये दोनों बेटे उसके नहीं, फिर भी उसने याकूब को उठाया और फिर अलग कर डाला। फिर याकूब से 12 बेटे आए, लेकिन उसने यहूदा को उठाया, उसमें यहूदा का बब्बर आया और उस कबीले को अलग कर डाला। फिर यहूदा का बब्बर आया और उसने 12 शागिर्दों को दुनिया में से चुनकर अलग कर डाला। उसी ने आपको चुना और पूरी दुनिया से आपको अलग कर डाला। इसलिए उसने कहा कि मैं भी इस दुनिया का नहीं और मेरे लोग भी इस दुनिया के नहीं है। आपका बसेरा ये दुनिया नहीं है। कहीं आप इसी तरह तो नहीं जिस तरह वो काब का बच्चा जब तक उन मुर्गियों के अंदर रहा वो अपने आप को मुर्गी ही समझता रहा, वो अपने आप को उनकी मानस समझता रहा, और जैसे वो खाते वैसे वो खाता, जैसे वो पीते वैसे वो पीता, जैसे मुर्गी कुकुरकाती फारे भागते वो भागता। कहीं आपकी प्रतिश, आपका गीत गाना, आपका झुकना इन दूसरे लोगों की मानत तो नहीं। खुदा का जिंदा कलाम सिखाता है, खुदा का जिंदा कलाम में लिखा है, बनी इसराइल से वो कहता है कि जब तुझे मैं वादे की सर जमीन पर लेकर जाऊं और तू वहां जाए और देखे कि वो लोग अपने देवताओं की किस तरह पूजा करते हैं, तू मेरे लिए ऐसा ना करना। इसका मतलब है अगर आपकी प्रस्तिश, आपकी दुआ, आपका गाना, आपका बचाना, आपका पढ़ना दूसरी कौमों के मालिक मुताबिक है, जो से खुदा को नहायत कराहत और नफरत भी है, अगर ऐसी मिलावट आप करते हैं तो फिर खुदा की हजूरी में आप मकबूल नहीं है।
اس نے آپ کو چنا ہے تاکہ آپ کو علیحدہ کر ڈالے. اس لیے تو وہ دنیا کے اندر اپنے زندہ کلام کے وسیلے سے آپ سے کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. خدا کا زندہ کلام کہتا ہے تم دنیا کا نمک ہو. پھر وہ کہتا ہے تم چراغ ہو. پھر تمہیں روشن شہر کی مانند رکھتا ہے. جو چھپا ہوا روشن شہر ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر نیچے نہیں اوپر رکھا جاتا ہے. خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے اور راہ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے، مجھے کلام پڑھنے کے لیے، مجھے چرچ چلانے کے لیے، مجھے منسٹری چلانے کے لیے، مجھے دعا کرنے کے لیے، مجھے پرستش کرنے کے لیے اس چراغ کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کے مطابق اس کی پرستش نہیں کرتے پھر آپ دنیا کا نور نہیں ہے. اگر اس کے مطابق آپ اس کی پرستش، اس سے دعا نہیں کرتے، آپ کا چرچ اس کے مطابق نہیں ہے، اس کلام کے مطابق ہے، پھر آپ دنیا کا نمک بھی نہیں ہے. اور خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس کام آئے؟ اس کو کہاں پھینکا جائے؟ پاؤں کے نیچے پھینکا جائے اور وہ پاؤں کے نیچے روندا جائے. یہی سبب ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر آج برکات کیوں نہیں ہے. اسے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے. مثال 6 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے فرمان کلام چراغ کی مانند ہے، اور لکھا ہے تعلیم تربیت ہے، اور اس کی جو تربیت ہے وہ ملامت ہے، اور یہ ملامت حیات ہے. اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کے اندر اس کلام کو ہونا چاہیے جو چراغ ہے، جو مجھے راستہ دیتا ہے. اگر میں پرستار ہوں تو مجھے کلام کے مطابق پرستش کرنی ہے. اگر میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا اس کلام کے مطابق ہے. کیسے؟ جب اس کو آپ جانیں گے، جب اس کو آپ پڑھیں گے. اگر آپ دنیا کو دیکھ کر کلام سے دعا کرتے ہیں، دنیا جیسے گاتی ہے آپ بھی گائی جا رہے ہیں. مرغی کڑکڑ کرتی، چوزے اس کے پیچھے بھاگتے، عقاب بھی بھاگا جا رہا. لیکن جب اس نے پر پھڑپھڑائے، اس نے اپنے آپ پر غور کیا کہ میں ان سے الگ ہوں، میں مرغی نہیں ہوں، میں عقاب ہوں، اور میرا بسیرا آسمانوں پر ہے، میرا بسیرا پہاڑوں پر ہے، میرا بسیرا بلندیوں پر ہے. You are a special people for God. آپ کو چن کر اس نے علیحدہ رکھا ہے تاکہ آپ سے اس کی گواہی آئے، تاکہ آپ اس دنیا کے اندر نمک ہو، تاکہ آپ سے کے وسیلے سے یہ دنیا رہائی اور نجات کو پائے. لذا یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے ایلیا اور خدا کے زندہ کلام کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، جب تک وہ خدا کے کلام کے مطابق چلتے رہے انہوں نے صرف راضی کو پایا. لیکن تربیت کی بات پر ہم ایلی کاہن پر آتے ہیں. ایلی کاہن جب تک خدا کے مطابق کلام کو مطابق زندگی بسر کرتا رہا، اس ہیکل کے اندر چراغ کی روشنی ہمیشہ اوپر رہی. لیکن جیسے جیسے خدا کے فرمان کو پیچھے چلتا گیا، جب اس کے بیٹے آئے، جب انہوں نے خدمت کی، چراغ کی روشنی کم ہوتی چلی گئی. اور خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تجھے تیری نسل سدا اس خدمت کو کرے گی. لیکن جب اس نے فرمان کے مطابق، کلام کے مطابق اس کی ہیکل کی تربیت نہیں کی، تو خدا نے کیا کہا کہ یہ بات مجھ سے جاتی رہی. کیا ہوا؟ خدا نے کہا تیرے خاندان میں کوئی بوڑھا نہ ہوگا. کیا؟ عمر کی درازی گئی. اس نے کہا کوئی جوانی کو نہ دیکھے گا، جو بچ جائے گا وہ ہوٹی کے نوالے کے لیے کہے گا کہ مجھے اس کہانت کی خدمت کرنے دو. یعنی رزق بھی اس سے جاتا رہا، عمر کی درازی جاتی رہی اور رزق اس سے جاتا رہا. خدا کا زندہ کلام کیا سکھاتا ہے کہ تم میری تمجید، میری عبادت کرنا، اس کے عوض میں تیری روٹی پانی کو برکت دوں گا، تجھے عمر کی درازی دوں گا. جب لائق طور پر آپ تمجید نہیں کرتے، کلام یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے مجھے جان تو لیا لیکن لائق طور پر میری تمجید نہیں کی. اور لائق طور پر تمجید، لائق طور پر پرستش، لائق طور پر چرچ، لائق طور پر خدا کا کلام سنانا، تبھی آسمان سے خدا کی روح آئے گی. اور جب خدا کی روح آتی ہے وہ بزدل نہیں بناتی، وہ آپ کو زور دیتی ہے، وہ آپ کو بہادری دیتی ہے، وہ آپ کو خدا کی پہچان دیتی ہے، وہ آپ کو زور دے کر زوراور کر دیتی ہے.
शमसून की जिंदगी को देख लिए। शमसून अपने माँ बाप के साथ जा रहा है, सामने से एक बब्बर शेर आ जाता है। शमसून की कहानी आपने सबने सुनी है। जब वो जा रहा है अपने लिए बीवी लेने के लिए, सामने से शेर आ जाता है। वो बेशक वो धाड़ा होगा, शमसून के पास ना कोई बंदूक है, ना कोई तलवार है, ना कोई और चीज, खाली हाथ है। और लिखा है खुदा की रूह जोर से उस पर पड़ी, और वो जब जोर से रूह उस पर उतरी, उसने खाली हाथ ही शेर को इस तरह मार दिया, लिखा है जैसे बकरी का बच्चा। और यही रूह पाक जब आप पर आती है, बेशक खुदा यीशु मसीह ने कहा शैतान शेर बब्बर की मानंद नीचे उतरा है और ढूंढता फिर रहा है किसको फाड़े। और जो रूह से खाली होता है, जो इस कलाम से खाली होता है, जो इस फरमान से खाली होता है, बेशक वो उसे फाड़ता भी है और मारता भी है और जिंदगियों को बर्बाद भी करता है। लेकिन जब रूह खुदा आपके साथ होती है, अगर शमसून उस शेर बब्बर को फाड़ सकता है, जब रूह खुदा आपके पास आएगी और शैतान आपके सामने आएगा, तो आप भी उसे बकरी की मानद जो है उसको फाड़ डालें। ये कभी नहीं हुआ, ये कभी बाइबल मुकद्दस नहीं सिखाती कि कभी खुदावन यीशु मसीह ने शैतान से कहा हो कि दफा हो जा, निकल जा, वो ना गया हो। ये बाइबल हमें सिखाती कभी जुर्रत शैतान करता ही नहीं है। वो फरमान को, यीशु के फरमान को मानता भी है। लिखा है जब जब उसका सामना होता है वो सजदा भी करता है और उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर को भी मानता है। और लिखा है कि जब उसने कहा कि निकल जा, वो निकला। कभी ऐसा ना हो उसने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन इंसान, आज का इंसान उसकी बात नहीं मानता। आज का इंसान उसकी पूरे फरमान को नहीं जानता। आज का इंसान ऐसा करने में काफी उससे दूर है। याद रखिए खुदा का जिंदा कलाम हमें इस बात को सिखाता है। लिखा है रात बहुत होगी, गुजर गई, अब वक्त दिन निकलने वाला है। तारीकी के कामों को छोड़कर हमें रोशनी की तरफ आना है। अभी हर एक खादम इस बात को लाता है कि उसकी आमद सानी होने वाली है। अभी हमें दूध की जरूरत नहीं है। पौलुस कहता है अभी भी हम दूध के मुश्ताक हैं, फीडर पीना चाहते हैं। हम आज भी हम तसल्ली का कलाम सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं पास्टर यहां खड़ा हो, कहे कोई बात नहीं, तू जैसी जिंदगी गुजार रहा है, जैसी प्रस्तिश कर रहा है, कोई बात नहीं, तू फजल के दौर के अंदर है, तेरे लिए वीजा लग गया है, तू सीधा उस बादशाह के अंदर जाएगा जो खुदा ने तेरे लिए तैयार किया। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा सोचिए भी नहीं। क्योंकि लिखा है कुरान के अंदर जब अपने जलाल में बैठेगा तो वो रास्ते से इंसाफ करेगा, वो इंसाफ करेगा और रास्ते से करेगा। और लिखा है जो सोए हुए हैं उनमें से जो बदी के लिए मरे वो बदी की क़यामत में शामिल होंगे, जो नेकी के लिए वो नेकी के लिए क़यामत के लिए खड़े होंगे। क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। और खुदा का जिंदा कलाम हमें सिखाता है, खुदा का जिंदा कलाम के अंदर याद रखिए, अब खुदा का कलाम ये सिखाता है आपका खुदा, आपका बादशाह इस जमीन का नहीं था। उसने ये सोच लिया, वो परेशान हो गया कि क्योंकि वो कहता है मैंने कहा कि ये बादशाह कैसा बादशाह है जिसकी शक्ल सूरत नहीं है, जिसका हुस्न जमाल नहीं है, ये कैसा बादशाह है। मेरे तो बड़ा उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर बना रखी थी, क्योंकि वो इस बादशाह को देखता था। तो इस तरह के तो बहुत सारे बादशाह हैं, इस तरह तो बहुत सारे यीशु हैं। उसने अपनी शक्ल ऐसी कुछ बना रखी थी। कहता जब मैंने ये पढ़ा तो मैं परेशान हो गया कि ये कैसा बादशाह है, ऐसा बादशाह जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, कोई उसमें जमाल नहीं है। अब ज़बूर 24 गाते हैं, क्या गाते हैं? रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है, वो जमीनी बादशाह हरगिज नहीं है। जमीन के अंदर उसने जब जब जमीन पर रहा उसने घराना चुना तो बुराई का, लेकिन वो यहूदा का घराना था। वो पैदा हुआ चमनी के अंदर, उसने जानवर लिया, गधा लिया, उसने मौत ली, लानती ली, तो वो कैसे अपने लिए शक्ल सूरत भी खूबसूरत ले सकता था? जब हर चीज उसने नीचे चुनी, बेशक उसने शक्ल और सूरत भी एक आम इंसान की ली, लेकिन वो जमीनी नहीं था। ना आप जमीनी है, आप गाते तो जरूर है रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। उसका जलाल है कैसा? किसी ने उसका जलाल कभी देखा है?
नहीं देखा, लेकिन बाइबल जरूर दिखाती है। दानियल कहता है 6:10-62 आयत के अंदर कि उस जलाल के बादशाह का बदन जबरे जद की तरह होगा। ऐसा पत्थर जो गरीन रंग का है, जो नयाब है, जो कीमती है, वो इतना खूबसूरत है, अतः उसका बदन आपके जलाल के बादशाह का, मेरे जलाल के बादशाह का जिस्म कैसा है? जबरे जद की तरह है, कीमती पत्थर की मानद है। और लिखा है उसकी आंखें आतिशी चिराग की तरह है, और लिखा है उसका चेहरा जो है वो बिजली की मानद है, और लिखा है उसके पांव और उसका बाजू जो है वो ताए हुए पीतल की मानद है। और खुदा का जिंदा कलाम जो आपको बताता है, मुकाशवा इसके बारे में लिखता है। मुकाशवा कहता है उसके बाल, उसका सर सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद है, उसकी आंखें आग के शोले की मानद, उसके सर पर बहुत से ताज है और खून की छिटकी हुई पोशाक है, पांव उसके खालिस पीतल के हैं जो भट्टी में तया गया हो, उसके दाहिने हाथ के अंदर 7 सितारे, उसके मुंह से 2 तलवार निकलती है, उसका चेहरा चिमकता हुआ तेज जो है आफताब की मानद है, और उसकी रान और पोशाक पर लिखा है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। कभी ऐसी तस्वीर बना के देखें, फिर आपको पता लगेगा कि वो मेरा बादशाह है कैसा, मेरा नासरी है कैसा, मैं जिसके लिए गाता हूं वो है कैसा। कभी आपने इस तरह सोचा? मुकाशवा के अंदर उसकी तस्वीर बयान करता है, कभी इसी तस्वीर बना के देखें। कहता है उसका बदन जबरे जद की तरह है, ऐसा कीमती पत्थर जो नयाब है, जो सब्ज रंग का है, और लिखा है उसकी आंखें आतिशी चिराग की मानद है, जलते हुए चिरागों की मानद उसकी आंखें हैं। क्या ऐसा चेहरा इसका है? हरगिज नहीं है। कहता है उसके बाल कैसे हैं? सफेद ऊन की मानद, बर्फ की मानद सफेद है, और आंखें आग के शोलों की मानद है, सर पर बहुत से ताज हैं, और खून छिड़की हुई पोशाक उसने पहना हुई है, और लिखा है खुदा के जिंदा कलाम के अंदर चमकता हुआ आफताब की मानद चमकता हुआ उसका चेहरा है। ऐसा खुदा है आपका, और वही खुदा आपको जो बादशाहों का बादशाह है वो आपको भी उस जलाल में रखना चाहता है। इसलिए तो वो क्या खुदा का कलाम फरमाता है कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो ऐसे शख्स की मानद है जो रेत पर अपना घर बनाता है। कहां घर बनाता है? कहां बनाता है? इतना तो आप कलाम सुनते हैं। कहां है आपकी प्रस्तिश, कहां आपका ध्यान? मैंने कहा कि वो ऐसा शख्स जो खुदा का कलाम सुनता और उसकी जो अमल करता है, ऐसे शख्स की मानद है जो रेत पर अपना घर बनाता। आपने कहा ठीक है, बनाता है, क्योंकि आप सुनने में कमजोर हैं, इसलिए कि आप दुनिया के साथ चलते हैं। आप उन दुनिया की तरह सुनना चाहते हैं कि मुर्गी कुकुर करे ऐसे भी कुकुर करी जाए। आप मुर्गियों की मानद नहीं है। आपको फड़फड़ाना पड़ेगा, अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा, क्या कहीं मैं तो नहीं, मैं भी अपने आप को मुर्गियों की मानद समझता हूं? आप मुर्गियों की मानद नहीं है। कलाम कहता है आपको काबों की मानद है, आप नमक हैं, आप नूर है, आप चिराग है, और जो चिराग जलता है उसे ही उठाकर ऊपर रखा जाता है, जो चिराग नहीं जलता उसे उठाकर ऊपर नहीं रखा जाता। इसलिए फटफड़ाइए, ढूंढिए। कलाम कहता है ये फरमान है, ये तेरे लिए तरबियत है, ये तेरे लिए जिंदगी है, इसके लिए फटफड़ाइए। इसलिए खुदा बंदा कलाम फरमाता है जो शख्स इस कलाम की तरबियत को लेता है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। लेकिन आज के लोग, आज की कलीसिया, आज के लोग, हम अपना घर रेत पर बनाते हैं। इस रेत के सबब से आज हमारी जिंदगी के अंदर तूफान बदलू का आता है, हम रोक नहीं पाते। हमारी जिंदगी के अंदर बीमारी का तूफान आता है, हम रोक नहीं पाते। हमारे बच्चे नाफरमानी की तरफ जाते हैं, हम रोक नहीं पाते। आज कलीसिया के अंदर जब कहा जाता है बीमारों के लिए, शफा के लिए कहा जाता है, पूरा चर्च खड़ा हो जाता है। बदरुओं के लिए कहा जाता है, पूरा चर्च खड़ा हो जाता है। आज हमारे घर रेत के ऊपर है। कलाम कहता है अगर तेरा घर चट्टान के ऊपर है तो जब तूफान आएगा, लहरें टकराएंगी, उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपका ये घर, आपका ये मकदस आपने रेत पर खड़ा कर रखा है।
फरमान भेजता है, आप रोक नहीं पाते। ये तो याद रखिए, आज की कलीसिया बेशक इस पर है, लेकिन खुदा का जिंदा कलाम आपको आज इख्तियार देना चाहता है। खुदा का जिंदा कलाम ने आप सिखाता है, उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। लूका 10 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं दुश्मन की कुव्वत पर। आज हमारी जिंदगी में इख्तियार क्यों नजर नहीं आता? उसने ये नहीं कहा मैं इख्तियार पास्टर को देता हूं, मैं बिशप को देता हूं। उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, हर एक बेटी को, हर एक बेटे को। आज क्यों हमारे पास इख्तियार नहीं? उसने कहा बदरुओं पर तुम्हें इख्तियार देता हूं, दुश्मन की ताकत पर तुम्हें इख्तियार देता हूं कि तुम उस पर कादर हो, उस पर गालिब आओ। ये इख्तियार इसलिए नहीं हमारे पास कि हम आज दुनिया की रवश के साथ, जैसे दुनिया भाग रही है, हम भी पीछे भागते जाते हैं। एक शख्स प्रचार उठता है, वो गाता है, वो थोड़ा ऊपर जाता है, सारी दुनिया उधर भाग पड़ती है। एक चर्च उठता है, सारे उधर भाग पड़ते हैं। हम उन मुर्गियों की मानद हो गए हैं, एक मुर्गी कुड़कुड़ करती है, सारे उसके पीछे भाग पड़ते हैं। हमें आज अपने आप को जानने की जरूरत है। अगर जब तक फड़फड़ाएंगे नहीं, इस कलाम के अंदर गोता नहीं लगाएंगे, फरमान को जानेंगे नहीं, इस चिराग को अपनी जिंदगी के, अगर आप प्रस्ताव हैं, इस चिराग को उठाइए, अपने राह में रखिए और फिर जानकर उसको आगे चलिए। आप कलाम सुनाते हैं, इस फरमान को उठाइए, अपने सामने रखिए, फिर कलाम को सुनाइए। आप दुआ करते हैं, इस कलाम को उठाइए, इस चिराग को उठाइए, अपने सामने रखिए, फिर दुआ कीजिए। फिर देखिए खुदा का जिंदा कलाम जो कहता है मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं दुश्मन पर। फिर दुश्मन आएगा जरूर, लेकिन खुदा कलाम सिखाता है अगर समसून के ऊपर उसकी रूह आई और समसून ने उस शेर को बच्ची के बच्चे, बकरी के बच्चे की मनन फाड़ डाला, और जब यही रूह पाक आपके दरमियान आएगी तो खुदा फरमाता है तुम दुश्मन पर गालिब आओगे। फिर शैतान आपके घर पर हमला जरूर करेगा, लेकिन वो उसे गिरा नहीं सकेगा। फिर वो बीमारी जरूर लाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी को गिरा नहीं पाएगा। वो फरमानी जरूर लाएगा, लेकिन वो आप पर गालिब नहीं आएगा, क्योंकि खुदाए रूह पाक का इख्तियार आपके पास आ जाएगा। और इस इख्तियार को पाने के लिए खुदा का जिंदा कलाम फरमाता है कि अभी हमें जागने की जरूरत है। बहुत तारीखी रात गुजर गई, अब दिन निकलने वाला है, अब जागने की जरूरत है। खुदा का जिंदा कलाम कहता है अब दूध की जरूरत नहीं है, तसल्ली के कलाम की जरूरत नहीं है, अब ठोस गुज़ा की जरूरत है। जब तक ठोस गुज़ा अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेते, अब जानते नहीं कि पहली आमद तो हो गई। पहली आमद इसलिए हुई कि आप जिंदगी को पाएं, आप हालिबी को पाएं, आप जिंदगी के अंदर हर तरह की शिफा को पाएं, क्योंकि उसने लिखा, लेकिन उसके नीचे अगर हम पढ़े तो लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। उसने अपने सारे हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और हमारे लिए फिदिया दे डाला। लेकिन अब जब वो आएगा, अब वो गधे पर नहीं बैठेगा, लिखा है अब वो सफेद घोड़े पर बैठेगा। अब लिखा है वो खून नहीं देगा। पहले वो आया, उसने अपना खून आपके लिए दिया, लेकिन अब मुकाशफा कहता है कि वो जब आएगा और वो फरिश्ते से कहेगा जो इख्तियार रखता है, अंगूरों की फसल पक गई है, अब इसे काट डाल और खुदा के गजब के हौस में डाल डाल और इसे रौंद। और उसने लिखा है जब उससे रौंदा तो 16 फलांग तक खून बह निकला। अब जब वो आएगा तो ऐसे लोग जो यीशु को जानते हुए उसी खुशखबरी पर ईमान नहीं लाए, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, उनकी कटाई करने के लिए आएगा। अब वो जब आएगा तो बेशक चन्नी में नहीं बैठेगा, लिखा है वो अदालत के तख्त पर बैठकर रास्ते से इंसाफ करेगा। आज जरूरत है इस बात को जानने के लिए। अगर आज भी आप इस बात पर ठहरे हुए हैं कि मेरी माफी हो गई, मुझे सब कुछ पालूस कहता है, खुदा का जिंदा कलाम हमें ये सिखाता है कि अब माफी नहीं है, अब हिसाब किताब होगा। जिसने रास्ते के काम किए हैं रास्ते का, और जिसने गुनाह किए गुनाह का। अब माफी नहीं है, अब हमें ठोस गुज़ा चाहिए, अब हमें इसे जानने की जरूरत है। ये फरमान है, ये चिराग है, आज इसे जानने की जरूरत। अगर इसको जानकर जिंदगी नहीं गुजारते तो फिर आप अकाबों की तरह नहीं,
آپ مرغیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور مرغیاں نیچے کے لیے تھیں، اور جو نیچے رہ جائے گا اسے خدا کا عذاب دیکھنا پڑے گا، جو ہوا میں اٹھا لیا جائے گا بے شک وہی خدا کے جلال کو دیکھے۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آئیے سب اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں چند لمحوں کے لیے بند کریں۔ میں چھوٹی سی دعا آپ کے لیے کروں گا تاکہ جتنے لوگ خدا کا کلام کو سن ہے اور جو سن رہے ہیں، تاکہ خدا آج آپ کو پہچان دے، آپ جانیں اپنے آپ کو کہ آپ کو خدا نے کل کائنات کے اختیار آپ کو دینا چاہتا ہے، تاکہ آپ دشمن پر غالب آئیں، شیطان پر غالب آئیں، آپ تاکہ آپ بیماروں پر شفا کا ہاتھ رکھیں، وہ شفا پائیں۔ خدا نے آپ کو اس دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ بیماری کے اندر رہیں، اس لیے پیدا بھی نہیں کیا آپ شیطان کے قبضے میں رہیں۔ خدا نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ اس کے نام کی گواہی دیں، اسی لیے وہ اختیار آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اے میرے زندہ خدا، اپنے فرمان کو چراغ کی مانند ان کی زندگیوں میں روشن کر دے، تاکہ یہ اپنے آپ کو جانے، اور نہ خدا تیرے اختیار کو تو جینا چاہتا ہے یہ پائیں، تاکہ عقابوں کی مانند یہ زور کو پائیں، اور نہ خدا بے شک تُنے نئے پر نئی جوانی عطا کر اور نئے ہوا کی بلندیوں تک لے جا زندہ خدا، تاکہ تیرے نام کی گواہی دنیا کے اندر یہ دے سکے۔ آج ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو جو تیرے پرستار ہیں زندہ خدا، اسے اپنی روشنی عطا کر تاکہ تیرے کلام کے مطابق زندہ خدا پرستش کرے۔ زندہ خدا تیرے لوگ جو دعا کرتے ہیں، جو جھکتے ہیں، انہیں بھی زندہ خدا روشنی عطا کر تاکہ تیرے کلام کے مطابق زندہ خدا تیری حضوری میں جھکیں، تاکہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہمیشہ ہماری زندگیوں سے تیری گواہی آئے، تاکہ قومیں جانیں کہ تو ہمارا زندہ خدا ہے۔ زندہ خدا تمام لوگوں کو کثرت سے برکت دے تاکہ ہمیشہ تجھ میں پڑے رہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ ہاللیلویا۔ کس نے برکت پائی ہے؟ نہیں ایک نہیں جدو لینا ہوتا ہے پھر دونوں ہاتھ چکی جائے۔ کیا خیال ہے؟ برکت تو دیکھیں کوئی چیز لینی ہو ایسے ہی ہاتھ نہیں پکڑی جاتی، ایسے ہی پکڑی جاتی ہے، ایسے پکڑتے ہیں نا، زیادہ لینا ہو ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں، ایسے پکڑ لیتے ہیں، ایسے تو نہیں پڑیا جاتا، ایسے پکڑا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پریکٹیکل کر کے دیتے ہیں نا، آپ مرغیاں نہیں ہیں ابھی ہم نے سیکھا ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی ڈفرنٹ؟ ہاللیلویا، پریز لارڈ۔ آئے ہم زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے گزار دیں، خدا کے خادم کے لیے جس کے منہ میں اس نے اپنا زندہ کلام آج ہمارے لیے رکھ چھوڑا۔ ہاللیلویا، پریز لارڈ۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کی تعریف و تمجید میں ایک گیت سنیں گے بھائی جانسن سے، اور پریز لارڈ، ہاللیلویا۔